So dear students, very good morning to one and all again. In last of consecutive classes, offline consecutive classes or online consecutive classes, we discussed about the L'Hopital rule, and today we will do some variety of questions of L'Hopital rule and different patterns of L'Hopital rule. So what we had done in the last classes, actually लोग वाले के if you are given any question of limit, then you can use the L'Hopital rule, but there is a condition, where there is a restriction before using the L'Hopital rule for any kind of limit questions. The non-determined form should be of 0 by 0 or plus minus infinity by plus minus infinity. So if you are given any limit question, you just put the limit first and get the value. If the value is finite, then that will be your answer, no doubt. But if you are getting any non-determined form like 0 by 0 or plus minus infinity by plus minus infinity, then you can apply L'Hopital rule. If you are not getting 0 by 0 form or plus minus infinity by plus minus infinity form, then you cannot apply the L'Hopital rule. In that case, we have to convert or we have to modify the given question so that we can obtain a non-determined form of the type 0 by 0 or plus minus infinity by plus minus infinity. So guys, it is very important that you will apply L'Hopital rule only when there is a non-determined form of 0 by 0 or plus minus infinity by plus minus infinity. Otherwise, we cannot apply L'Hopital rule. But we can modify that question into the form of 0 by 0 or plus minus infinity by plus minus infinity. So some questions in last classes we had done. Today we will do some more questions of L'Hopital rule. So I am presenting my screen. Can anybody please tell me what was the last question we had taken? If anybody has any idea. We had done this question in last class. Guys, Yes. Yes, sir. we had done this question in last class. No. Okay. And what about this question? We had done in this question last class or not? No, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes. Okay. And what about this question? I don't think so. This we had done in the last class. You did it, sir. No, sir. Okay. So we start with this question. Oh, आप लोगों को जब भी स्क्रीनशॉट लेना हो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं. जब भी आपको कुछ नोट डाउन करना हो आप पेन और पेपर साथ में लेके बैठिए, नोट डाउन कर सकते हैं, राइट? और कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं. एनीवेज, ओके. So this is the question. Evaluate limit extending to 1. ये 1 प्लस को इग्नोर कर दीजिएगा बिकॉज 1 प्लस इज सेइंग राइट हैंड लिमिट, बट इन क्वेश्चंस यू विल गेट ओनली 1, not 1 plus or 1 minus. So limit extending to 1, x upon x minus 1 minus 1 upon ln x. ये ln x का मतलब होता है log x. मैंने आपको पहले भी समझाया था. ln x is basically log x. जिस भी log का बेस मेंशन नहीं होता है उसे log x से या ln x से शो करते हैं, और इसका बाय डिफ़ॉल्ट बेस जो होता है वो e होता है. ओके, ये मैंने आपको ब्रिज क्लासेस में अच्छे से समझाया था. सो फाइंड लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 x अपॉन x माइनस 1 माइनस 1 अपॉन log x. तो हमारा पहला स्टेप क्या होता है? सबसे पहले हम इस लिमिट को इस क्वेश्चन में पुट करते हैं. पुट करते हैं.
यस पुट कीजिए 1 Infinity upon minus infinity. 1 minus 1 infinity minus 1 upon log 1. Log 1 is Infinity. 0, 1 upon 0 is infinity. So this is infinity minus infinity form. Can we apply the L'Hopital rule in this case? No, sir. No, absolutely No, not. sir. No, sir. Yes. So what should we do now? LCM. Take the LCM. Yes, we have to modify this question. We have to modify this function. तो इस फंक्शन को मॉडिफाई करने के लिए हम क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं. सो लिमिट x इज टेंडिंग टू 1, ये एलसीएम लिया हमने x माइनस 1 लॉग x और ऊपर बना हमारा x log x माइनस x माइनस 1. ये हमने एलसीएम लेके इस फंक्शन को थोड़ा सा मॉडिफाई कर लिया. अब ज़रा लिमिट पुट करके चेक करते हैं. इफ़ यू आर पुटिंग x इज इक्वल टू 1 ईयर, देन log 1 is 0 and 1 minus 1 is 0, so 0 minus 0 is 0. And if you are putting x is equal to 1 in denominator, then 1 minus 1 is 0 and log 1 is 0. 0 into 0 is 0, 0. So you can see that previously this question has non-determined form infinity minus infinity, but if we can modify this function, then the non-determined form will be of the type 0 by 0 or plus minus infinity by plus minus infinity. Can we apply the L'Hopital rule now? Yes, sir. Yes, sir. Yes, we can apply L'Hopital rule now. So we are applying Yes, sir. L'Hopital rule. We have अप्लाई कीजिए. क्या होता है L'Hopital रूल? डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर इन न्यूमरेटर इंडिविजुअली एंड डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर एंड इन डिनोमिनेटर इंडिविजुअली विथ Yes. रिस्पेक्ट टू लिमिटिंग वेरिएबल. ये बात सबसे इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा. विथ रिस्पेक्ट टू लिमिटिंग वेरिएबल. यहाँ पे लिमिटिंग वेरिएबल x है, तो हम इसका x के रिस्पेक्ट में L'Hopital रूल लगाएंगे. x के रिस्पेक्ट में न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन न्यूमरेटर में करेंगे और डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन डिनोमिनेटर में करेंगे. दिस पॉइंट इज वेरी क्लियर टू एवरीवन और नॉट? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके, ठीक है, अप्लाई करते हैं. सो लिमिट x टेंडिंग टू 1, x एज इट इज, differentiation of log x is 1 upon x plus log x as it is, differentiation of x is 1 What? minus differentiation of x minus 1 is 1 divided by x minus 1 as it is, differentiation of log x is 1 upon x plus log x as it is, differentiation One. of x minus 1 is 1. This x cancel, यहाँ 1 बचा, ये 1 से ये नेगेटिव 1 कैंसल. So you can see numerator has log x and denominator has x minus 1 upon x plus log x. Now put the limit again and check. Yes, sir. If you are putting x is equal to 1 in numerator, then log 1 is 0. Yes, sir. If you are putting x is equal to 1 in denominator,
then 0 0. plus 0, that is 0. अब एक काम करते हैं, इस फंक्शन को थोड़ा मॉडिफाई कर लेते हैं. डिनोमिनेटर में ये जो x माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस लॉग एक्स है, इसको एलसीएम लेके लिख लेते हैं. Yes. डिनोमिनेटर का एलसीएम कितना आएगा? x. 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 तो x एलसीएम ऊपर शिफ्ट हो जाएगा. सो वी कैन मॉडिफाई दिस फंक्शन. लिमिट x टेंडिंग टू 1 x log x divided by x minus 1 plus x log x. Is it okay? Yes, sir. अभी तक हमने एलोपिटल रूल दोबारा अप्लाई नहीं किया है, हमने सिर्फ इस फंक्शन को मॉडिफाई किया है. ज़रा लिमिट चेक करके देखें. x इज इक्वल टू 1, log 1 इज 0, x इज इक्वल टू 1, 0 and log 1 0, that is 0. 0. 0 by 0 form. We can apply L'Hopital rule. अप्लाई कीजिए. लिमिट x टेंडिंग टू 1 And x as it is, differentiation of log x is 1 upon x plus log x as it is, differentiation Dot of x 1. is 1 divided by differentiation of x minus 1 is 1 plus x as it is, differentiation of log x is 1 upon x plus log x as it is, differentiation of x is 1. Any doubt? No, sir. Now cancel x and x and this x and this x. Now put limit again. Check. x is equal to 1 पुट किया, log 1 0, तो ऊपर बन गया 1 plus 0. नीचे पुट किया तो 1 plus 1 plus 0, that is 1 by 2. So the finite answer is 1 by 2. You can take the screenshot. Otherwise, solution is already given in this slide, and you can get this solution or this slide in PDF form in Google Classroom itself. तो देखिए यहाँ पे, सर फिजिकल क्लास में बता दिया. नहीं फिजिकल क्लास में बता दिया, मैं पूछ रहा हूँ ऑनलाइन क्लास वालों से बात कर रहा हूँ मैं फिलहाल, कि आप इसको Yes, गूगल yes. क्लासरूम में भी देख सकते हैं ना. फिजिकल क्लासरूम में तो पूरा चैप्टर ही हो गया ये. ओके, तो आप देख सकते हैं कि इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी था, लेकिन फिर भी इस फंक्शन को मॉडिफाई करके हमने 0 बाई 0 फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया और एल ऑपिटल रूल अप्लाई कर दिया. सिमिलरली कुछ और अलग टाइप के फंक्शंस भी होते हैं जो डायरेक्टली एल ऑपिटल की फॉर्म में नहीं होते हैं, बट वी कैन कन्वर्ट देम. बताता हूं मैं आपको. दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन. You will get it in Google Classroom. Okay. So this is the question what we had done in the yesterday's offline class. Find limit x tending to infinity x raised to the power 1 upon x. तो सबसे पहला काम क्या है आपका? आप लिमिट पुट करेंगे तो ये इन्फिनिटी रेज टू द पावर 1 अपॉन इन्फिनिटी, डेट इज 0. सो दिस Zero. इज इन्फिनिटी रेज टू द पावर 0 फॉर्म. अब तक तो क्या था, फंक्शन को आप रीडिफाइन करके या मॉडिफाई करके
उसे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की फॉर्म में ले आते थे, और न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की फॉर्म में लाके आप ये चेक कर सकते थे कि ये 0/0 फॉर्म या प्लस माइनस इन्फिनिटी बाय प्लस माइनस इन्फिनिटी फॉर्म है या नहीं है। लेकिन यहाँ पे फंक्शन की जो नॉन डिटरमाइंड फॉर्म है वो इन्फिनिटी रेज टू द पावर 0 है, यानी फंक्शन जो है वो बेसिकली फंक्शन रेज टू द पावर फंक्शन की फॉर्म में है। तो इस केस में क्या करेंगे हम लोग? सर हाँ, इसको रीडिफाइन कैसे करेंगे? सर यस सर एक बात बताओ, जैसे किसी भी नंबर के अगर रेज 0 हो तो उसका मान 1 होता है ना? क्या बोल रहे हो? किसी भी संख्या की घात अगर 1 हो, सॉरी 0 हो, तो उसका मान 1 होता है ना? किसी भी संख्या का घात का मान 0 हो तो उसका वैल्यू 1 होता है, बिल्कुल होता है। तो यहाँ से अगर 1 नहीं हो सकता, क्योंकि इनफाइनाइट कुछ तो संख्या होगी इनफिनिट में। बेटा, आपने क्या मेरी पहले की क्लासेस अटेंड नहीं की? एलोपिटल रूल की फर्स्ट क्लास अटेंड की नहीं की आपने? यस सर, कैसे की थी। तो मैंने कुछ नॉन डिटरमाइंड फॉर्म्स लिखवाई थी। यस सर। तो फिर क्या सर, मतलब एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करने के लिए इसको चेंज करना पड़ेगा? वो एक अलग बात है, वो बात की बात है। अभी मैं आपकी क्वेश्चन का ये जवाब दे रहा हूँ। आपने ये बोला ना इन्फिनिटी रेज टू द पावर 0 1 क्यों नहीं होता, तो मैंने आपको बताया था ना कुछ Yes. नॉन डिटरमाइंड फॉर्म्स होती है। 0/0 1 क्यों नहीं होता फिर? है यस ना? सर। तो समझ गया 0/0 प्लस माइनस इन्फिनिटी बाय प्लस माइनस इन्फिनिटी, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, इन्फिनिटी रेज टू द पावर 0, 0 रेज टू द पावर इन्फिनिटी, 1 रेज टू द पावर इन्फिनिटी। दीज ऑल आर नॉन डिटरमाइंड फॉर्म्स। ये मैं पहले बता चुका हूँ आपको, है ना? यस सर। ओके, ठीक है। अब देखिए यहाँ फंक्शन रेज टू द पावर फंक्शन है, तो एलोपिटल रूल में कन्वर्ट करने के लिए अभी फिलहाल तो एलोपिटल रूल नहीं लगा सकते, तो क्या करेंगे बताइए? इस केस में कैसे इसको मॉडिफाई करेंगे? लॉग लेकर। करेक्ट। तो सबसे पहले इस फंक्शन को कोई नया वेरिएबल एज्यूम कर लीजिए आप। तो लेट फॉर एग्जांपल u ले लेते हैं। u इज इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी x रेज टू द पावर 1/x। अगर कभी ऐसा क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले इस पूरे के पूरे क्वेश्चन को आप एक नया वेरिएबल एज्यूम कर लीजिए। अब हमें किसका वैल्यू फाइंड करना है? हमें किसका वैल्यू फाइंड करना है? यू का वैल्यू U हमें का। फाइंड करना है। ठीक है, अब दोनों तरफ लॉग ले लीजिए आप। लॉग u इज इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी log x रेज टू द पावर 1/x इज इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी, लॉग की प्रॉपर्टी लगा दीजिए इसमें 1/x log x। ये 1/x पहले आ गया लॉग की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग, यानी इसका मतलब ये हुआ, इसे आप ऐसा लिख सकते हैं लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी log x अपॉन x। अब ज़रा लिमिट पुट करके चेक कीजिए। तो इन्फिनिटी पुट किया, log इन्फिनिटी इज इन्फिनिटी, और x इज इक्वल टू इन्फिनिटी पुट किया डिनोमिनेटर में इन्फिनिटी। तो यहाँ पे log u जो है वो इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म में आ गया। u जो था, मेन क्वेश्चन जो u था वो इन्फिनिटी रेज टू द पावर 0 फॉर्म में था, तो वहां पर हम एलोपिटल रूल अप्लाई नहीं कर सकते थे। बट log u is in the form of infinity by infinity, so we can apply L'Hopital rule on log u. We cannot apply L'Hopital rule on u, but we can apply L'Hopital rule on log u. Is it clear to everyone? यस सर। Yes. तो लिख लीजिए applying L'Hopital rule
on the function log u. log u जो फंक्शन है उस पर आप एलोपिटल रूल अप्लाई कर सकते हैं, तो कीजिए। लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी log x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन x डिवाइडेड बाय x का डिफरेंशिएशन 1। पुट द लिमिट 1 अपॉन इन्फिनिटी that is 0। तो log u का क्या वैल्यू आ गया? log u का क्या वैल्यू आ गया? 0। 1/8। 0। 0 तो u का वैल्यू क्या हो गया? e raised to 0 e raised to the power 0 that is 1। 1 आपका u का वैल्यू ही आपको फाइंड आउट करना था, तो u का वैल्यू आ गया 1। दिस इज योर आंसर। You can take the screenshot, otherwise solution is already given in this slide. Any question? Guys, any question? सर रूट्स वाली क्वेश्चन बताओ। कौन से? रूट्स वाले। रूट वाले सर। तो कोई भी रूट वाला क्वेश्चन आप पूछ लेना, असाइनमेंट आपको अपलोड कर रखा है ना मैंने, उसमें करो आप लोग। यस सर, उसमें से क्वेश्चन नहीं आ रहे। हो ही नहीं सकता, ऐसा हो ही नहीं सकता। आप लोग एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखिए, एलोपिटल रूल अप्लाई करते वक्त आपको जो डिफरेंशिएशन करना है वो लिमिटिंग वेरिएबल के रेस्पेक्ट में करना है। वो वेरिएबल जो लिमिट में होता है ना, उसी के रेस्पेक्ट में करना होता है। और बाकी जो भी वेरिएबल होता है, जो भी कांस्टेंट होता है, सबको कांस्टेंट माना जाता है। इस बात का अगर आप ध्यान रखोगे तो कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो जो भी क्वेश्चन आपसे असाइनमेंट में नहीं हो रहे हैं वो एक बार वापस ट्राई करना मेरी इस बात को याद करके। फिर भी नहीं होता है तो आप मुझे व्हाट्सअप करना। ओके सर। ओके, सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, ऐसा एक भी क्वेश्चन नहीं है जो उसमें डिफिकल्ट हो। Always differentiate with respect to limiting variable and assume other variables if any, other arbitrary constants if any, all constants. Clear to everyone? ओके सर। Okay. ओके सर। Let's सर do फंक्शन वाले बता दो क्वेश्चन, function वाले मतलब जो आपने दिया था ना IIT रुड़की, उनके क्वेश्चन फर्स्ट वाला, फर्स्ट असाइनमेंट में। बेटा आपको डाउट आ रहा है क्या, या आपने बिना डाउट क्वेश्चन किए ही नहीं पूछ लिया सर, मुझे? किए थे, फिर किए थे। दोबारा ट्राई करो। क्या नाम है आपका? मोहम्मद निज़ाम। मोहम्मद निज़ाम। आपने एक बार ट्राई किया, यस सर। दोबारा ट्राई करो, ठीक है? एक बार ट्राई करके आप छोड़ देते हो, ऐसा नहीं होता है ना। हमेशा ऐसा होता है, आपने क्वेश्चंस किए, आपने 30 क्वेश्चंस किए, 30 क्वेश्चन में से आपको 10 क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ रही है। उन 10 क्वेश्चन को आप नेक्स्ट डे फिर ट्राई करो, वो 10 क्वेश्चन में से 3 क्वेश्चन देखना पक्का सॉल्व हो जाएंगे। फिर आपको 7 क्वेश्चंस में प्रॉब्लम आ रही है, उन 7 क्वेश्चंस को आप फिर नेक्स्ट डे करो, डेफिनेटली 2 क्वेश्चन फिर सॉल्व हो जाएंगे। अब आपके पास सिर्फ 5 क्वेश्चन बचेंगे, 5 क्वेश्चन को फिर नेक्स्ट डे ट्राई करो। फिर अगर आपसे नहीं हो रहे हैं तो फिर आप मुझसे पूछो। आप एक बार अटेम्प्ट करते हो, उसको क्रॉस वेरीफाई करते नहीं हो, कुछ गलती होती है उसको वापस देखते नहीं हो, और फिर टीचर से पूछना स्टार्ट कर देते हो। सबसे पहले आप उसको करो, उसको वापस देखो, मुझसे कहाँ गलती हो रही है, स्टेप्स को देखो, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो फिर आप मुझसे पूछो, मैं सॉल्व कर दूंगा। ठीक है मोहम्मद निज़ाम? ओके सर। एक बार में गिव अप मत किया करो। अल्टीमेटली मैं तो हूँ ही, मैं तो सारे क्वेश्चन बता दूंगा, लेकिन उससे फ़ायदा नहीं होगा आपको। फ़ायदा आपको तभी होगा आप सब लोगों को जब आप खुद सॉल्व करेंगे इन क्वेश्चंस को। ओके, ठीक है।
एक और क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद में टाइम मिलता है तो मोहम्मद निज़ाम का कोई एक डाउट ले लेंगे ताकि इसको थोड़ी शांति मिल जाए. ओके सर. ठीक है, एक और क्वेश्चन करते हैं. इवेल्युएट लिम जस्ट अ सेकेंड, ये क्या हो गया, एक सेकेंड. कोई प्रॉब्लम हुआ है यहाँ पे, एनीवेज कोई बात नहीं. ठीक है, यहाँ करते हैं. सो evaluate limit x tending to infinity 1 plus 1 upon x raised to the power x. So guys, अगर आप चेक करेंगे वापस इसको, x इज इक्वल टू इन्फिनिटी रखा. श्रेय हो गया तो सही. प्लीज म्यूट योर सेल्फ. Okay. So guys, if you put x is equal to infinity here, the 1 upon infinity is 0, so 1 raised to the power infinity form. तो आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन है फंक्शन रेज टू द पावर फंक्शन अगेन. समझ में आ रहा है? यस और नो? यस सर. यस, Yes, फंक्शन sir. रेज टू द यस सर. तो वैसे ही करेंगे जैसे अभी हमने किया था. लेट u is equal to limit x tending to infinity 1 plus 1 upon x raised to the power x. इसे आप कोई वेरिएबल एज्यूम कर लीजिए u. log ले लीजिए दोनों तरफ. log u is equal to limit x tending to infinity log 1 plus 1 upon x raised to the power x. log की प्रॉपर्टी लगाइए. लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी x log 1 plus 1 upon x. यहां तक कोई डाउट है किसी को? नो सर. ठीक है, अब ज़रा लिमिट पुट करके देखिए. अगर आप लिमिट पुट करेंगे तो क्या बनेगा, इन्फिनिटी इंटू लॉग 1 प्लस 1 अपॉन इन्फिनिटी. तो 1 अपॉन इन्फिनिटी 0, मतलब log 1, और log 1 का मतलब 0. तो आपका फॉर्म बन रहा है इन्फिनिटी इंटू 0 फॉर्म. तो सिंपल सी बात है, आप इसे इन्फिनिटी इंटू 0 को 1 अपॉन इन्फिनिटी लिख सकते हो, तो ये इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म बन जाएगा. या फिर आप चाहें तो इन्फिनिटी को 1 अपॉन 0 लिख दीजिए, तो ये 0 बाय 0 फॉर्म बन जाएगा. समझ रहे हैं मेरी बात? आप अगर इन्फिनिटी को चाहें तो 1 अपॉन 0 लिख दीजिए, तो 0 बाय 0 फॉर्म बन जाएगा. या आप चाहें तो 0 को इन्फिनिटी 1 अपॉन इन्फिनिटी लिख दीजिए, तो इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म बन जाएगा. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यस सर. इसका मतलब ये हुआ कि आप चाहें तो इस x को नीचे ले जाके 1 अपॉन x लिख सकते हैं, या आप चाहें तो log 1 प्लस 1 अपॉन x को डिनोमिनेटर में ले जा सकते हैं. इन दोनों में से किसी एक को डिनोमिनेटर में ले जाना पड़ेगा, तभी ये इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म या 0 बाय 0 फॉर्म बनेगा. सिंपल. log 1 प्लस 1 अपॉन x को मैं डिनोमिनेटर में नहीं लेके जाऊंगा, क्योंकि अगर लॉगरिथमिक फंक्शन को डिनोमिनेटर में लेके जाते हैं तो उसका बेस चेंज हो जाता है. तो बेस चेंज हो जाएगा, वापस हमें टू द बेस ई लाने के लिए फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, कॉम्प्लिकेशन हो जाएगी, कोई मतलब नहीं है. तो हम क्या करते हैं, x को डिनोमिनेटर में ले जाते हैं. सो दिस फंक्शन कैन बी रिटन एज लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी log 1 plus 1 upon x divided by
1 अपॉन एक्स। लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते? इज इट क्लियर और नॉट? यस सर, Yes, क्लियर। यस। अब जरा चेक करो, if you are putting x is equal to infinity, then log 1 is 0, and if you are putting x is equal to infinity in denominator, then it will be 0. So it's a 0 by 0 form. ध्यान रखना, log u has a non-determined form of the type 0 by 0. तो इसका मतलब एलोपिटल रूल किस फंक्शन पे अप्लाई करेंगे हम? log u पर। So applying L'Hopital rule on the function log u. तो अप्लाई कर दीजिए। यहां पे लिमिटिंग वेरिएबल कौन सा है? लिमिटिंग वेरिएबल कौन सा है बेटा? एक्स। एक्स। तो एलोपिटल रूल में डिफरेंशिएट किसके रेस्पेक्ट में करेंगे? एक्स के एक्स के। एक्स के रेस्पेक्ट में। तो कीजिए, लिमिट एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी, न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन न्यूमरेटर में कीजिए, log 1 प्लस 1 अपॉन एक्स का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन एक्स इंटू माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, यही होता है। डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में फंक्शन है 1 अपॉन एक्स, इसका डिफरेंशिएशन कीजिए माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर से माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर कैंसिल, लिमिट पुट कीजिए, x is equal to infinity, 1 upon infinity is 0, so 1 upon 1 plus 0, that is 1. So log u is equal to 1, then u is equal to e raised to the power e raised to the power 1, that is e, and this is your answer. You can take the screenshot, otherwise solution is already given in the slide. तो ध्यान रखना, आपको क्वेश्चन असाइनमेंट के सारे क्वेश्चन भी एलोपिटल रूल से सॉल्व करने हैं, किसी और मेथड से सॉल्व नहीं करने हैं। और अगर एलोपिटल रूल का पैटर्न 0 बाई 0 या प्लस माइनस इन्फिनिटी बाई प्लस माइनस इन्फिनिटी नहीं बन रहा है, तो आपको उस क्वेश्चन को मॉडिफाई करके उस पैटर्न में लाना पड़ेगा। अगर फंक्शन इस फॉर्म में है, फंक्शन रेज टू द पावर फंक्शन फॉर्म में है, या इसको ऐसे बोलें कि नॉन डिटरमाइंड फॉर्म 0 रेज टू द पावर इन्फिनिटी या इन्फिनिटी रेज टू द पावर 0 या 1 रेज टू द पावर इन्फिनिटी आ रही है, तो फिर आप लॉग लेके इस पैटर्न से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और अगर इनके अलावा कोई और फॉर्म बन रहा है तो आप फंक्शन को मॉडिफाई करेंगे, कैसे भी करके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर क्रिएट करेंगे ताकि 0 बाई 0 फॉर्म या प्लस माइनस इन्फिनिटी बाई प्लस माइनस इन्फिनिटी फॉर्म बन जाए। एनी क्वेश्चन? हटा रहा हूं मैं इसको। Yes, anybody has any doubt, please ask. Because from my side, this is it in L'Hopital rule. Please ask if anybody has any doubt. Okay. कोई डाउट नहीं है। निज़ाम का क्वेश्चन देखते हैं, निज़ाम क्या पूछ रहा था। निज़ाम क्वेश्चन है आपके पास? यस सर। एक बार जस्ट अ सेकेंड।
जस्ट अ सेकंड निज़ाम. हाँ, बताइए निज़ाम. सर फर्स्ट क्वेश्चन एक. नहीं, आप क्वेश्चन बोलिए या मैं निकालूँ गूगल क्लासरूम में. यस सर, आप निकालो. एक बार निकालता हूँ मैं. असाइनमेंट नंबर कौन सा है? फर्स्ट. असाइनमेंट फर्स्ट. There are 3 assignments. You are talking about assignment 1. Okay. Yes. In which question you are facing problem? फर्स्ट. पहले वाले में प्रॉब्लम आ गई. यस सर, बाकी तो हो गए. बेटा ट्राई नहीं करते हो, ईमानदारी से ट्राई नहीं करते हो, यही तो प्रॉब्लम नहीं है. सर, समझ में तो आ रहा है पूरा. बेटा यही तो बात है, यही तो मैं आपको अभी समझा रहा था कि आप लोग क्या करते हो, सिर्फ एक बार ट्राई करते हो, क्रॉस वेरीफाई करते नहीं हो. चलो मेरी स्क्रीन तो गई, आप क्वेश्चन बताइए बेटा क्या है, बोलिए. एफ हाँ बोलो. F9 इक्वल टू f of 9 equal to 9, 9. F-9 इक्वल टू 4. f dash 9 is equal to 4. देन लिमिट आपको फाइंड करनी है लिमिट x टेंड्स टू 9, एक्सटेंडिंग टू 9 रूट fx रूट fx -3 माइनस 3 रूट x -3 डिवाइडेड बाय अपॉन में. रूट x माइनस 3. यही है, देख लो एक बार चेक कर लो. यस सर. देखिए सबसे पहले इस लिमिट में x इज इक्वल टू 9 पुट कीजिए. तो अगर आप x इज इक्वल टू 9 पुट करेंगे तो बनेगा अंडर रूट f ऑफ 9 माइनस 3 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 9 माइनस 3. यही बनेगा लिमिट पुट करने पे. यस सर. ठीक है. f ऑफ 9 की वैल्यू क्वेश्चन में आपको 9 दे रखी है, तो इसका मतलब अंडर रूट 9 माइनस 3 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 9 का वैल्यू 3 होता है, 3 माइनस 3. ऊपर भी 3 माइनस 3 हो गया, नीचे भी 3 माइनस 3 हो गया, डेट इज 0/0 फॉर्म. निज़ाम यहाँ तो कोई यस डाउट? सर. नो सर. इसका मतलब ये हुआ बेटा कि हम इसमें एलोपिटल रूल लगा सकते हैं. यस सर. एलोपिटल रूल लगाइए. लिमिट x टेंडिंग टू 9, ऊपर वाले का ऊपर डिफरेंशिएशन. अच्छा निज़ाम किस वेरिएबल के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है? x वेरी गुड. तो अंडर रूट एफ एक्स का डिफरेंशिएशन बताइए क्या होगा? 1/2 रूट ऑफ fx 1/2 रूट ऑफ एफ एक्स इंटू F एफ डैश एक्स. ये होगा नहीं होगा? यस सर. और आपने यही नहीं किया होगा, पक्की बात है. यस सर. बस मैं यही कह रहा था बेटा, प्रॉब्लम डिफ़िकल्ट कभी नहीं होती है. आप लोग दोबारा चेक किया करो कहाँ गलती हो रही है, कहाँ रह गया है, क्या मिस कर दिया हमने. नेक्स्ट डे फिर ट्राई किया करो, फिर नेक्स्ट डे ट्राई किया करो. चलिए कोई बात नहीं, सर. कोई बात नहीं, कोई बात नहीं. -3 का डिफरेंशिएशन 0 हाँ 0 0 0 डिवाइडेड बाय 1 अपॉन अंडर रूट एक्स का डिफरेंशिएशन 1/2 root 1/2 अंडर रूट x. 1/2 अंडर रूट एक्स माइनस 0. यहाँ तक कोई डाउट किसी को? no नो sir. सर. चलो अब लिमिट पुट करके देखें दोबारा. यस. पुट कीजिए. एफ डैश 9 डिवाइडेड बाय 2 अंडर रूट ऑफ एफ ऑफ 9 माइनस 0, 0 तो 0 रह गया, डिवाइडेड बाय 1 अपॉन 2 अंडर रूट 9. एफ डैश 9 का वैल्यू 4 गिवन है, 4 अपॉन 2 इंटू एफ 9 का वैल्यू 9 गिवन है, 9 तो अंडर रूट एफ ऑफ 9 का वैल्यू हो गया 3 3 यस सर. डिवाइडेड बाय 1/2 इंटू Into into 3.
तो ये 1/2 इंटू 3 से 1/2 4 आ इंटू गया 3 कैंसिल हो गया, आपका Yes, आंसर आ sir. गया 4। 4। अब बताओ मोहम्मद निज़ाम। यस सर, वो मिस्टेक हो रही थी फर्स्ट में। मिस्टेक दोबारा चेक नहीं किया था ना इसलिए मिस्टेक पकड़ में नहीं आई। यस सर। चलो, और कोई डाउट है किसी को? एनीबडी हैज एनी अदर डाउट? सर डिटर्मिनेंट्स कब चलेगा? हाँ बेटा, डिटर्मिनेंट्स कब से स्टार्ट करेंगे? डिटर्मिनेंट अभी अभी नहीं करूँगा मैं, स्टार्ट बाद में करूँगा। इसके बाद मैं आपको पढ़ाऊँगा। आप एक तो म्यूट कीजिए अपने आप को। जितेंद्र, म्यूट योरसेल्फ। जितेंद्र, प्लीज म्यूट योरसेल्फ। Okay. From next class, I will start Rolle's and Lagrange's mean value theorems in detail, and after that we will think about determinants and all. If you don't have any doubt, then I think we should leave the class. If you have any doubt, then please ask. Any new student today? Yes sir. क्या नाम है आपका? What's your name? Shyam Sharma. Your first class today. Yes sir. Okay, Sham, I am just posting the Google Classroom link in the chat box. Please find it and join the Google Classroom of Mathematics. ठीक है सर। Google Classroom Mathematics के जब आप ज्वाइन करोगे तो आपको वहाँ पे प्रीवियस क्लास की जितनी भी रिकॉर्डिंग्स है वो मिल जाएगी, आपको नोट्स मिल जाएंगे, असाइनमेंट्स मिल जाएंगे, ई बुक्स मिल जाएगी, सिलेबस मिल जाएगा। मतलब BSc 103 मतलब मैथमेटिक्स फर्स्ट का जितना भी मटेरियल है यू विल गेट इन दैट गूगल क्लासरूम वेरी इजीली। इट्स क्वाइट यूजर फ्रेंडली। ओके सर। ओके, ब्रिज क्लासेस का कोई इशू नहीं है। ओके। ब्रिज क्लासेस जो थी वो आपके सिलेबस क्लासेस नहीं थी, तो अगर आप उन क्लास रिकॉर्डिंग्स को नहीं सुनते हैं या फिर आप उनके नोट्स नहीं देखते हैं तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। सिलेबस क्लास जहाँ से स्टार्ट हो रही है वो एलोपिटल रूल से ही स्टार्ट हुई है, तो आज की क्लास में आपको काफ़ी एलोपिटल रूल समझ में आ गया होगा। और थोड़ा बहुत अगर रह जाता है तो पिछली क्लास की जो रिकॉर्डिंग है एलोपिटल रूल की वो आप गूगल क्लासरूम में देख सकते हैं, आपको आराम से समझ में आ जाएगी। इज इट ओके श्याम शर्मा? ओके सर। और भी फिर उसके बाद में सर नई कॉपी में एलोपिटल रूल से लिखे हैं। क्या बोल रहे हो? कॉपी में एलोपिटल रूल से ही लिखी सिर्फ। हाँ, आपका सिलेबस एलोपिटल रूल से स्टार्ट होता है बेटा। पहले वाली तो ब्रिज क्लास से मैंने समझाया तो था, आपको एलोपिटल रूल से ही पढ़ाई करनी है। ओके गाइस, सो थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू एंड हैव अ गुड डे। टेक केयर ऑल ऑफ यू। थैंक यू सर। ओके सर।